Hello, NEET aspirants. Welcome to the part 2 of our ongoing NCERT based MCQs. हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के चैप्टर से MCQs कर रहे हैं और पार्ट 1 में हमने 13 क्वेश्चंस किए थे. चलिए हम 13 के बाद 14th क्वेश्चन से अब आगे कंटिन्यू करते हैं. दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 14. इट इज अगेन एन assertion and reason type question. Assertion says carbon dioxide diffuses faster than O2 across alveolar membrane despite having lower partial pressure gradient. Reason is carbon dioxide is 20 to 25 times more soluble in water than O2, facilitating its faster diffusion. Yes, we know that carbon dioxide despite having low partial pressure या हम कहेंगे कंसंट्रेशन कम होने की के बावजूद भी जो डिफ्यूजन रेट कार्बन डाइऑक्साइड की होती है वो ज्यादा होती है ऑक्सीजन से. और दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. असर्शन इज करेक्ट. रीजन क्या है? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट इज 20 to 25 टाइम्स मोर सॉल्युबल देन ऑक्सीजन. ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड हैज मोर सॉल्युबिलिटी देन oxygen, so जिसकी वजह से it diffuses faster. Okay, so reason is also correct and reason is correctly explaining the assertion, so our correct option will be option 3. Okay, let's move to the next question. Which of the following is not a factor affecting the rate of diffusion of gases across the alveolar membrane? We have to select the option which is not a factor. Thickness of membrane, okay, this is a factor. Partial pressure gradient of gases, partial pressure हमने देखा है, that plays a role in the rate of diffusion. Volume of alveolar cavity, ये तो हमने NCERT में कहीं नहीं पढ़ा. Then there is the solubility of gases. Yes, अभी हमने कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की solubility के बारे में भी बात कर रहे थे. So ये तीनों, first, second and third, fourth, these all three are the factors that affect the rate of diffusion of gases across alveolar membrane. लेकिन volume of alveolar cavity does not affect directly. Does not affect. It affects, ये क्या affect कर सकता है? It can affect the amount of gas या air that can be held in lungs. lungs में अगर alveolar cavity का volume ज्यादा होगा तो ज्यादा lungs में जो है air जो है ज्यादा होल्ड कर सकता है लंग. ओके, सो दिस डिफ्यूजन रेट से इसका इट हैज नो डायरेक्ट रिलेशन. सो योर करेक्ट ऑप्शन among the four will be option 3. Let's move to the question number 16. The diffusion membrane for gas exchange in the alveoli consists of 3 layers. We know that. Which of the following is not one of these layers? हमने बोलना है कि इनमें से इन 4 ऑप्शंस में कौन सी उन 3 लेयर्स का पार्ट नहीं होती है. स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोला, यस ये तो होती है. एल्वियोलाई की जो एपिथेलियम होती है, जो जिसको हम स्क्वैमस एपिथेलियम बोलते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ द 3 लेयर्स. देन देयर इज एंडोथेलियम ऑफ alveolar capillaries. Yes, that is also, as we know कि जो blood capillary होती है उसकी जो lining है, उसकी जो endothelium है, okay, that is also the part. Basement membrane surrounding the alveolar epithelial cells. Yes, इसके in alveoli, और we know that alveoli and capillaries के बीच में हमारे पास non cellular basement होता है, basement membrane होता है. That forms the third layer. Okay, लेकिन ये stratified epithelium of alveoli ये तो कहीं नहीं होता. alveoli में कहीं पे stratified epithelium नहीं होता है. तो this will be the correct option. Okay, let's move to the question number 17. This is statement based question. Statement 1 says that the rate of gas diffusion is directly proportional to the solubility of gases and inversely proportional to the thickness of the diffusion membrane. Yes, we know that अगर हम rate of diffusion की बात करेंगे, rate of diffusion हमारा directly proportional होता है solubility. गैस की solubility कितनी है? ठीक है, ज्यादा solubility गैस की होगी तो ज्यादा rate of diffusion होगा, जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड का देखा. ओके, और
rate of diffusion is inversely proportional to the thickness. Okay, thickness of diffusion membrane, जितना membrane जो है आपका diffusion membrane thick होगा, okay, उतना कम rate of diffusion होगा. Okay, gas diffusion. Okay, so this is the correct statement. Now statement second says the total thickness of the diffusion membrane of the alveoli is more than a millimeter, which enhances the rate of diffusion of gases. No, it is wrong. Not more than, it should be less than. It is less than rather. Okay, NCERT mein specifically it is mentioned. Okay, okay, so this statement is wrong. So only statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. So your correct option will be option number 1. Okay, then let's move to this question, which is question number 18. Which of the following factors causes the dissociation of oxygen from oxyhemoglobin in the tissues? We know that tissues में क्या होता है, हमारे tissues में we have कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर यानी कंसंट्रेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड की वो बहुत ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की बहुत कम होती है, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है, और क्या होता है, और यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है कंपेयर टू अगर हम एल्वियोलाई की बात करेंगे. ओके, सो हमने एज सच दीज कंडीशंस, हाई PCO2, लो ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर और कंसंट्रेशन, हाई H पॉजिटिव कंसंट्रेशन और हाई टेम्परेचर, ये चीजें क्या करती है, ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना होता है एल्वियोलाई के पास, हीमोग्लोबिन, ओके, these factors lead to the dissociation. हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन होता है वो डिसोशिएट होता है, और बिकॉज टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है, एंड दैट इज कैरीड टू द एल्वियोलाई, जहां से वो बाहर मूव होता है. ओके, सो हमने देखना है यहाँ पे कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये डिसोसिएशन यहाँ पे जो हमने देखा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में होती है, तो वो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं. वी सेड ऑक्सीजन हमारा लो होना चाहिए, लो, सेकंड ऑप्शन में हमारा लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, हाई PCO2 होना चाहिए, ओके, हाई H पॉजिटिव कंसंट्रेशन एंड हाई टेम्परेचर. सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2. Let's move to the next question, question number 19. यहाँ पे भी assertion reason type question है. Assertion says in alveoli, oxygen binds to hemoglobin to form oxyhemoglobin due to favorable conditions. Okay, सही लग रहा है ना? और alveoli में क्या होता है? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है, तो बनाता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन, और बिकॉज ऑफ फेवरेबल कंडीशन. व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस? वही जो टिश्यूज में था उनका उल्टा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कम होती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होता है, कम होता है, और आपका जो टेम्परेचर है वो कम होता है, लो होता है. तो दीज फेवरेबल कंडीशन जो है हेल्प ऑक्सीजन टू बाइंड विद दिस हीमोग्लोबिन टू फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन. नाउ रीजन, व्हाट इज द रीजन? हाई PO2, यस, हम कहाँ की बात कर रहे हैं, एल्वियोलाई की बात. एल्वियोलाई में क्या होता है, हाई PO2, यस, लो PCO2, ओके, low H positive concentration, yes, and low temperature in the alveoli favor the binding of oxygen to hemo. Yes, यही तो हम बोल रहे थे अभी. So this reason is also correct, and it is the correct explanation of assertion. So your correct option will be option 3. Okay, let's move to the question number 20, which is again a statement based question. दो statements दिए हैं. Statement 1 is carbon dioxide is carried by hemoglobin as carboxyhemoglobin. ओ यहाँ पे दिस इज ए ट्रिक, यहाँ पे आपके साथ जो है एग्जामिनर कैन प्ले दिस. लुक, इट इज नॉट कार्बॉक्स, इट इज कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन. कार्बॉक्सी हीमोग्लोबिन कौन बनाता है, ये वाला, ये बनाता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड. व्हेन यू इनहेल कार्बन मोनोऑक्साइड, तो एट दैट टाइम दैट कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड्स विद द हीमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्बॉक्सी हीमोग्लोबिन, बट कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्स carb amino hemoglobin. Okay, so this statement is wrong. It's not carboxy, it is carb amino. Okay, statement second, the binding of CO2 to hemoglobin is only influenced by the partial pressure of
PO2. This, although we know that partial pressure of oxygen can influence the binding of carbon dioxide to hemoglobin, but यहाँ पे इसने क्या लिखा है स्टेटमेंट में, एक्सट्रीम स्टेटमेंट ओनली दिया है. There are other factors as well. Even PCO2 also can influence the binding of carbon dioxide to hemoglobin. हमने अभी देखा H positive concentration और उसके बगैर हमने टेम्परेचर भी देखा. So but in this it says that only. So it has said only PO2. So this also is a wrong statement. So here both statement 1 and statement 2 are incorrect. So correct option will be your option 4. Okay, let's move to the question number 21. Assertion says pneumotaxic center located in the medulla directly regulates the respiratory rhythm. This is a wrong statement. Pneumotaxic centers पहली बात जो है ये मेडुला नहीं पॉन्स रीजन में होते हैं ब्रेन के. ओके, और ये डायरेक्टली रेगुलेट नहीं करते हैं. ओके, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. ये रेगुलेट नहीं करते हैं. ओके, दे ओनली मॉडरेट फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. ये खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं रेस्पिरेटरी रिदम में. ओके, दे moderate the functions of respiratory rhythm center. So this is a wrong statement. Reason says the respiratory rhythm center in pons sends signal to reduce the duration of inspiration. This is again a wrong statement. पहली बात तो ये है कि RC जो होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो होता है, ये पॉन्स में नहीं होता, ये मेड्यूला में होता है. ओके, दिस इज इन मेड्यूला. एंड सेकेंड थिंग इज ये जो सिग्नल को सेंड करना टू रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, ये इसका आरआरसी का काम नहीं होता. ये सिग्नल जो है ये नीमोटैक्सिक सेंटर का काम होता है. नीमोटैक्सिक सेंटर. ओके, नीमोटैक्सिक सेंटर सेंड्स द सिग्नल टू रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर टू रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन. जब आपकी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है तो ये पॉन्स, ये जो नीमोटैक्सिक सेंटर होता है पॉन्स में होता है, ये सिग्नल भेजता है आपके आरसी को टू रिड्यूस, आप कम कीजिए ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन सो दैट ब्रीदिंग रेट जो है वो इंक्रीज हो, जिसकी वजह से मोर एंड मोर ऑक्सीजन आपकी बॉडी में पहुंच जाए. ओके, सो लेकिन ये पूरा इन्होंने गलत किया है. इन्होंने न्यूमोटैक्सिक को बोला था मेडुला और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को बोला था ये कहां होते हैं, पॉन्स में, जो कि उल्टा है. इनकी लोकेशन भी इंटरचेंज की थी क्वेश्चंस में, ऑप्शंस इन असर्शन और रीजन में, और इनका फंक्शन भी इंटरचेंज किया था. ओके, सो बोथ द स्टेटमेंट, बोथ असर्शन एंड रीजन आर incorrect. So your correct option will be option 4. Okay, now let's move to the question number 22, which is again an assertion and reason question. Okay, the chemosensitive area near the respiratory rhythm center primarily detects changes in oxygen concentration. It's a wrong statement. जो आपका कीमोसेंसिटिव एरिया होता है ना, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि वहीं पे ही नजदीक जो है रेस्पिरेटरी रिदम के साथ ही एक कीमोसेंसिटिव एरिया होता है. और ये जो कीमोसेंसिटिव एरिया होता है ये ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो चेंज होगी, बढ़ेगी, कम होगी, उसको डिटेक्ट नहीं करता, बल्कि ये किसको करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H पॉजिटिव कंसंट्रेशन. अगर उसमें चेंज आ रही है, ये कीमोसेंसिटिव एरिया उस चेंज को, किस चेंज को, कार्बन डाइऑक्साइड और H पॉजिटिव कंसंट्रेशन की चेंज को डिटेक्ट करता है. ओके, और अकॉर्डिंगली क्या करता है, ये सिग्नल भेजता है किसको, ये आपके RRC जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, जिसका मेन रोल होता है, प्राइमरीली इन्वॉल्व होता है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम्स, उनको ये फिर सिग्नल भेजता है इसको, RRC को, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, कीमोसेंसिटिव एरिया. जब भी ये कार्बन डाइऑक्साइड या H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इसको लगता है कि इंक्रीज हुई है ब्लड में, तो ये सिग्नल भेजता है आपके RRC को, और RRC क्या करता है, रेट ऑफ ब्रीदिंग को क्या करता है, ब्रीदिंग रेट को क्या करता है, इंक्रीज करता है, सो दैट ये ऑक्सीजन, ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है बॉडी से एक्सपेल किया जाए. ओके, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी बॉडी में होता है. सो दिस इज हाउ दिस कीमोसेंसिटिव एरिया वर्क्स. ओके, इट डिटेक्ट्स द चेंज
इन कार्बन डाइऑक्साइड, जो ही इसको लगेगा कि चेंज ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में, तो ये सेंड करता है सिग्नल आरआरसी को। आरआरसी जो है इंक्रीज करता है रेट ऑफ ब्रीदिंग को, ब्रीदिंग रेट को, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव होता है बॉडी से। सो लेकिन यहाँ पे बोला गया था इट डिटेक्ट्स चेंजेस इन ऑक्सीजन, व्हिच इज रॉन्ग। ओके, सो व्हाट इज द रीजन नाउ? Reason: oxygen plays a significant role in regulating the respiratory rhythm. No, NCERT में भी specifically mention है कि काफी insignificant, almost ना के बराबर जो है आपका ऑक्सीजन जो है रोल प्ले करता है रेस्पिरेटरी रिदम्स को रेगुलेट करने में। ओके, सो दिस इज अगेन अ रॉन्ग statement, statement. Yes, reason is also wrong, assertion is also wrong. So your correct option will be option 4. Okay, now there is this question number 23. Assertion: emphysema is primarily caused by damage to alveolar walls, leading to decreased respiratory surface. Yes, we know that एम्फिसीमा जो है इट इज, इससे क्या होता है, आपके एल्वियोलर वॉल जो है डैमेज होते हैं। जब आपके एल्वियोलर वॉल्स डैमेज हो गए तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी रेस्पिरेटरी सरफेस है, रेस्पिरेटरी सरफेस आपकी क्या है, मेनली एल्वियोलाई है, और जब वो डैमेज होगी तो आपकी रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होगी, डिक्रीज होगी। ओके, सो दिस इज करेक्ट, असर्शन इज करेक्ट। रीजन: cigarette smoking is major risk factor for emphysema. yes, NCERT का पॉइंट है ओके कि सिगरेट स्मोकिंग जो है मेजर फैक्टर जो है, मेन कंट्रीब्यूटर जो एम्फिसीमा का है, आपके एल्वियोलर वॉल्स डैमेज या रेस्पिरेटरी सरफेस को कम जो होती है वो बिकॉज ऑफ दिस सिगरेट स्मोकिंग से होती है। दिस इज द मेजर कॉज। ओके, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड इट इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग योर assertion. So your correct answer would be option 3. Okay, let's move to the question number 24. What is the primary cause of wheezing in asthma? asthma में as you know, asthma में क्या होता है, आपकी bronchi और bronchioles की inflammation होती है। ओके, क्या होती है, inflammation होती है। as you know that हमारा asthma जो है ये एक एलर्जिक डिसऑर्डर है, एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से होता है। ओके, एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से होता है, उसकी वजह से आपकी जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स है उनमें इन्फ्लेमेशन होती है, जिसकी वजह से जब आप ब्रीथ करते हैं तो यू ब्रीथ नॉइजली। ओके, यू ब्रीथ नॉइजली, आवाज के साथ करते हैं, तो उसी जो ब्रीदिंग के टाइम वो जो आवाज निकलती है ना, उसी को हम व्हीजिंग साउंड बोलते हैं। ओके, सो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एज़मा। ओके, क्योंकि आपकी इन्फ्लेमेशन हो जाता है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज, तो प्राइमरी कॉज ऑफ व्हीजिंग क्या होता है, व्हीजिंग क्या होता है, इन्फ्लेमेशन। ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स का जब आपका एरिया अंदर का कम हो गया तो जब आप सांस लोगे व्हेन यू ब्रीथ तो नॉइज क्रिएट होती है, व्हीजिंग साउंड क्रिएट होती है। सो दिस इज ऑप्शन 2. ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज ऑफ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. व्हाट इज द common consequence of prolonged exposure to industrial dust in occupational respiratory disorders? We know that we have, जो भी हमारे एम्प्लॉइज होते हैं, जो भी लोग काम करते हैं उन इंडस्ट्रीज में जहां पे डस्ट क्रिएट होता है, ओके, इंडस्ट्रीज में जहां पे डस्ट क्रिएट होता है, तो उनकी ऑक्यूपेशन उन डिसऑर्डर्स को बोलते हैं, क्योंकि वो उनकी एम्प्लॉयमेंट ऑक्यूपेशन के साथ रिलेट होता है, तो दे आर नोन एज ORD. ओके, ORD मतलब ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। जैसे आपका सिलिकोसिस है, एस्बेस्टोसिस है, सिलिकॉन की वजह से, ओके, सिलिकॉन डस्ट की वजह से सिलिकोसिस होता है, एस्बेस्टोस की वजह से एस्बेस्टोसिस होता है, बेरिलियम की वजह से बेरिलियोसिस होता है। ओके, so there are many more occupational respiratory disorders. okay, तो इन जो इंडस्ट्रियल डस्ट होता है इसकी वजह से मेन जो एक्सपोजर होता है ना वर्कर्स को जो वहां पे काम करते हैं, उससे क्या कॉन्सिक्वेंस होता है उन पे, क्वेश्चन यही पूछ रहा है हमसे। ओके, वी नो कि हमारी जो ये जो है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है, इनमें मेन प्रॉब्लम लंग्स में क्या होती है, दैट इज फाइब्रोसिस। ओके, क्या होती है,
फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस मतलब आपका जो फंक्शनल टिश्यू है लंग्स में, ओके, यू नो आपकी एल्वियोलर सरफेस होती है, ओके, फंक्शनल टिश्यू जो होता है वो डैमेज होता है, ओके, वो डैमेज होता है और वो रिप्लेस होता है किससे, रिप्लेस्ड बाय आपका फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू, ओके, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की वजह से, ओके। एक्चुअल में क्या होता है, जब आप डस्ट इनहेल करते हो ना, आप कंटिन्यूसली डस्ट इनहेल करते हो, तो आपकी लंग्स पे जब वो डस्ट पहुंच जाती है, ओके, क्योंकि वो आपके जैसे सिलिकॉन होता है, एस्बेस्टॉस, दीज आर केमिकल्स, ओके, व्हेन दे रीच इन योर लंग्स, ओके, वहां पे क्या होता है, इम्यून, इस डस्ट की वजह से आपकी इम्यून रेस्पॉन्स जो होता है वो काफी ओवरवेलमिंग होता है, ओके, जिसकी वजह से आप के जो लंग सरफेस में है एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है, ओके, और दैट विल लीड टू स्कार्स, ओके, स्कार्स इन योर लंग्स, ओके, या थिकनिंग, थिकनिंग हो जाती है आपका जो लंग टिश्यू है, ओके, जो एल्वियोलाई में होता है, तो एज सच आपका जो फंक्शनल लंग की सरफेस थी ना वो डैमेज हो जाती है, ओके, उसी को हम फाइब्रोसिस बोलते हैं, लीडिंग टू सीरियस लंग damage. So your correct option answer will be option 3. So this ends our lecture. Okay, we will continue with other chapters, or your feedback is very welcome. Okay, thank you.